सो सेक्शन 87 के साथ 88 पढ़िए और उसको कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन में आंसर मिलेगा हमको। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ is an offense by reason of any harm which it may cause, which it may cause or be intended by the doer to cause, which it may cause or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, or who has given the consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। ठीक है, जब आप सेक्शन 87 की बात करते हैं तो सेक्शन 87 में यू विल फाइंड दैट देयर इज कंसेंट। सेक्शन 87 में भी कंसेंट है और सेक्शन 88 में भी कंसेंट है। ठीक है, सेक्शन 87 में क्या है, कंसेंट है, बट द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज इक्वल टू और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, above 18 years of age, but when you look at the age of consent, the person who can give the consent, you have to refer to section 90। देखो सेक्शन 90 क्या कहता है, refer to section 90। A consent is not such a consent as it intended by any section of this code if the consent is given by the person under fear of injury or under a misconception of fact, or if the person doing the act knows or have reason to believe that a consent was given in consequence of such fear or misconception। थर्ड देखो, unless the contrary appears from the context if the consent is given by the person who is under 12 years of age। तो अगर कोई व्यक्ति under 12 years of age है, if a person is under 12 years of age, if a person is under 12 years of age, so ये सेक्शन 90 क्या कहता है कि कंसेंट जो है, consent is always given by the person who is above 12 years of age, above 12 years of age। अगर consent इसके नीचे कोई व्यक्ति अगर देता है तो it will amount to no consent, unless and until a contrary intention appears from the context। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि एज ऑफ कंसेंट तो ये है, दिस इज द पर्सन हु कैन गिव प्रॉपर कंसेंट। वह व्यक्ति जो 12 साल से ऊपर की एज है वही प्रॉपर कंसेंट दे सकता है। ही इज द पर्सन हु कैन गिव अ वैलिड कंसेंट। ठीक है, सो ही इज द पर्सन हु कैन गिव अ वैलिड कंसेंट। पढ़ लेते हैं इन द मीनवाइल। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given the consent। तो 87 में the person who has given the consent is above 18 years of age, he is above 18 years of age, he is above 18 years of age। 18 एंड 18 above हो जाएगा, above 18 साल से ऊपर, वो दोनों इंक्लूडेड है इसमें। 18 years is the rule of exception, whereas 12 years is the general rule। Yes, same rule applies in the case of offense of rape। 12 वाला जो रूल है, सेक्शन 90 वाला जो रूल है, इट विल अप्लाई इन द केस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, किडनैपिंग में जो चाइल्ड है, किडनैपिंग में क्योंकि एडल्ट की किडनैपिंग नहीं होती, चाइल्ड की किडनैपिंग होती है, तो जो किडनैपिंग के लिए जो चाइल्ड है वो उसकी एज 12 ईयर्स है व्हेन यू हैव टू रीड किडनैपिंग, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, तो वहां पे वही एज चलेगी। मगर यहां पे जो एज चलेगी वो कौन सी है, 87 में 18 साल से ऊपर। किडनैपिंग में, किडनैपिंग में, हाँ तो वहां पे भी अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, सही कह रहे हो, वहां पे भी सही है। ये क्या हो रहा है यार, सही करो, करेक्ट है ना। ठीक है, सो इसमें 87 में लिखो, 87 में देर इज, इफ देर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट, ऐसे लिखो 87 में, 87 को इस तरह से लिखो, इफ देर इज एन इंटेंशन
to cause death or grievous hurt. Defense of 87 not allowed. Defense of 87 not allowed. There is an intention to cause death or grievous hurt. Defense of 87 not allowed. Similarly, there is a likelihood. There is a knowledge about the likelihood of causing the harm. Then also defense of 87 is not allowed. There is a defense of, if there is a knowledge of likelihood of committing such an harm or causing such an harm. इस चार्ट को जरूर बना लेना, इससे हेल्प हो जाएगी. Intention to cause death or grievous hurt, defense of 87 will not be allowed. Similarly, if there is a knowledge about the likelihood of causing that harm, defense of 87 will not be allowed. Defense of 87 will not be allowed. Causing any harm, likely to cause death or grievous hurt. So knowledge or likelihood of causing death or grievous hurt. The defense of 87 is not allowed. For the purpose of section 87, so 87 को फिर से कर लो एक बार. हाँ, so 87 में क्या था? If there is an intention to cause death or grievous hurt, if there is a knowledge or likelihood of causing death or grievous hurt, the defense of 87 is not allowed. Under section 87, there is a consent. Now this consent can be express or this consent can be implied. Express consent मतलब by the words spoken or by the words written. Implied consent हमेशा कैसे होता है? कंडक्ट के द्वारा होता है. Implied consent is by conduct. So consent is given by the person who is above 80, equal to above 18 years of age. ठीक है? Now सेक्शन 87 में जो हार्म कॉज करता है, ना तो उसकी इंटेंशन होती है डेथ और ग्रेवियस हर्ट करने की, और ना तो नॉलेज और लाइक्लीहुड होती है ग्रेवियस हर्ट और डेथ कॉज करने की. अब पढ़ो सेक्शन 87. Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm. अब any harm को ब्लॉक्स में ले लीजिए. Any harm by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given the consent. फिर से पढ़ो उसको. By reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given the consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. ठीक है? So the person who has consented has undertaken. He has undertaken the risk. Undertaken the risk of that harm. जैसे जितने भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं ना, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, तो उसमें द कंसेंट इज एक्सप्रेस और इंप्लाइड. एक्सप्रेस कंसेंट होता है, हो सकता है आपसे साइन करवा लिया जाए. एक्सप्रेस कंसेंट इज देयर. ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन 87 एंड 88 इज when you look at 87, the consent is given by the person who is 18 years of age. 88 में you will not find the age. ठीक है? You will not find the age. 88 में बताऊंगा 88 में क्या हो रहा है. दूसरी तरफ when you look at section 88, the harm is caused for the purpose of the benefit. The harm is caused for the purpose of benefit. इसका illustration देखो section 87 का. A and Z agree to fence with each other for amusement. Fence मतलब वो तलवारबाजी जो होती है. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fences may be caused without foul play. Without foul play को अंडरलाइन करो. अगर फाउल प्ले होगा तो इसका मतलब क्या है? There is an intention to cause death or grievous hurt, or there is a likelihood of causing death or grievous hurt. ठीक है? While playing fairly, and if Z gets hurt, A has committed no offense.
Section 88, nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith. दोनों को डाई करो. Any harm in good faith, and who has given the consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. ठीक है. Now the difference between section 87 and 88 is, when you look at section 88, बाकी सारी चीजें सेम है. The person who has given the consent, उसकी जो एज है क्या है, 12 साल से ऊपर है. डॉक्टर्स का केस आ जाएगा. सो द पर्सन इज अबव 12 years ऑफ एज, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट नहीं है. तो एज ऑफ कंसेंट अगर नहीं है, एंड देयर इज द सेक्शन इज साइलेंट अबाउट व्हाट शुड बी द एज ऑफ कंसेंट. सो फॉर सेक्शन 88 द एज ऑफ कंसेंट विल बी एनी पर्सन और एज ऑफ कंसेंट विच इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 90. तो जो सेक्शन 90 में एज ऑफ कंसेंट है, वही सेक्शन 88 में एज ऑफ कंसेंट है. दैट इज सेक्शन 88 में जो कंसेंट दे रहा है वो व्यक्ति 12 ईयर से ज्यादा है, उसकी एज 12 ईयर से ज्यादा है. क्या हुआ बताओ. कंसेंट ये बिलो अगर जैसे अगर हाँ ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, अगर वो बिलो 12 होगा, 5 साल का होगा, तो वो उसमें अप्लाई हो जाएगा. वो नहीं होगा. देखो उसके लिए क्या होगा, पहले अभी 88 पढ़ो. 88 में जो व्यक्ति है ना, उसकी जो एज ऑफ कंसेंट है वो 12 ईयर से ज्यादा है. अब वो जो सिनेरियो आप बता रहे हो ना, कि अगर सपोज आउट ऑफ नेसेसिटी हमें ऐसा व्यक्ति को ऑपरेट करना पड़े जिसकी जो एज ऑफ कंसेंट है 12 साल से नीचे है, अगर हम चाहें भी तो उसका कंसेंट नहीं दे सकते. तो उसके लिए भी सेक्शंस हैं, 88 है, 92 है, वो सब सेक्शन, वो क्या नाम है उसका, 87, 88, 89 है, 92, 89 और 92 दोनों सेक्शंस हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे अभी. ठीक है. सो सेक्शन 88 में द कंसेंट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू अबव 12 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. दूसरा हो गया, द कंसेंट इज और एनी हार्म हैज बीन कॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. Any harm has been caused for the benefit of the person. Any harm has been caused for the benefit of the person. Any harm has been caused for the benefit of the person while acting in good faith. Any harm has been caused for the benefit of the person while acting in good faith. While acting in good faith. देखो ये जो है ना, ये इम्प्लिसिट है. देखो इसमें ये है कि एनी अदर हार्म कैन बी कॉस्ट. ठीक है. बट यहां पे है जो फेयर प्ले वाला जो वर्ड है ना, फेयर प्ले, फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द मेजर्स. जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई मैटर आता है तो यू हैव, इफ यू हैव फॉलोड द प्रोटोकॉल तो यू हैव टेकन द ड्यू केयर एंड अटेंशन. नहीं, 88 में 87 भी, 87 में सपोज हम गेम्स खेल रहे हैं तो हमने अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो वी हैव टेकन ड्यू केयर एंड अटेंशन. 88 में भी समझो एक छोटा सा इंजेक्शन अगर लगता है, तो असमी का केस बताता हूं, तो एज ऑफ तो साइन करवा लिया जाता है. एक इंजेक्शन होता है, ल्यूनेस का इंजेक्शन होता है. वो ल्यूनेस का जब इंजेक्शन स्किन पे लगता है तो एंट्री एडमिट कराया जाता है, और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का. तो लोगों को लगता है 5 मिनट के लिए इतना पैसा ले लेते हैं, 20-30 हजार रुपए. तो वो एक्चुअली उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको एडमिशन कराना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे एक बार इंजेक्शन लगा तो उसके बाद शरीर में एकदम से दाने दाने से हो जाते हैं कई बार. तो एक इंजेक्शन और लगता है हाइड्रोपॉड, उसको नलीफाई करने के लिए. तो डॉक्टर हैज एन अवेयरनेस अबाउट इट, दैट इज व्हाई दे इंसिस्ट कि आपको करवाना पड़ेगा. हम अपने हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं करवाएंगे. ठीक है. तो ऐसे में यू आर टेकन द रिस्क, यू कैन नॉट. डॉक्टर का जो बेनिफिट है, डॉक्टर के पास अवेलेबल 88 में, डॉक्टर के पास अवेलेबल है. डॉक्टर हैज वार्नड यू दैट यू मस्ट एडमिट द चाइल्ड, but if the parents are not obeying to the directions of the doctor, then doctor is safe. Doctor has committed no offense.
ठीक है, डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है किसी भी तरह से। सिमिलरली जब 88 और 87 की बात होती है, 88 को समझो, 88 में द कंसेंट हैज बीन गिवन बाय द पर्सन हु इज 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब यश ने कंसेंट दिया है दैट एंड ही इज 12 ईयर्स से ऊपर। नाउ आई हैव अ डस्टर, और इसने शैतानी करी क्लास में, उन्होंने डस्टर में इसको मार दिया, और डस्टर लगने के बाद इसको यहां पे कट लगा, खून निकलने लगा। तो आई हैव सॉट अ बेनिफिट, आई हैव सॉट अ क्या नाम है उसका, द रिलीफ अंडर सेक्शन 88। बताओ विल आई सक्सीड? वाई? नो, ही हैज गिवन द इम्प्लाइड कंसेंट। अगर क्लास में आ रहा है ना, नहीं ना, मार खाने नहीं आ रहा, पर मैं ये डिफेंस ले रहा हूं कि मैंने इसको जो मारा है ना, इसको सुधारने के लिए मारा है। डिफेंस बताओ आप, डजेंट मैटर नहीं होगा, डिफेंस बताइए आप। बेनिफिट है, तुम्हें मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, कंसेंट है। जब क्लास में आपने एडमिशन लिया है ना, तो आपने ये एक इम्प्लाइड कंसेंट है दैट यू विल बी रेडी टू फेस द स्कोल्डिंग ऑफ द टीचर ऑल्सो। मैंने अगर मारा भी है आपको तो ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट पर से इज एन ऑफेंस नाउ, कह सकते हैं। तो गुड फेथ वाला जो वर्टिकल है ना, गुड फेथ वाला जो एंगल है, वो आप यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हो, दैट द टीचर डिड नॉट एक्टेड विद गुड फेथ। नॉलेज भी हो सकता है कि टीचर हैड द नॉलेज, कि आई हैव द नॉलेज कि अगर मैं डस्टर मार रहा हूं तो किसी को लग सकता है। And there is a risk, so not of a death, but when child is so I will get hurt. So I give the consent, and both the person know the law. So there is no good faith in the person who has been taking, because there is no utmost care and caution involved. So in that case, also the 87 the consent will be there, and because you. देखो उसमें ना, उसमें यू हैव गिवन द कंसेंट एंड द थिंग वाज यस नॉन टू यू, तो यू कैन नॉट एक्यूज हिम। Not person is. 87 में पर से नेसेसरी है, अगर पर से नेसेसरी नहीं होगा ना, ये वाला जो सिनेरियो है, ये 87 का सिनेरियो नहीं है। ये वाला जो सिनेरियो है ना, मैं डिस्कस करता हूँ भी, जो सेक्शन 300 का 6 है ना, 5 जो है, उसके साथ डिस्कस करूंगा कंसेंट वाला। हाँ, तो वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। उसके लिए यू हैव ऑलरेडी टेकन द बेनिफिट, यू हैव ऑलरेडी गिवन द कंसेंट, बट यू हैव नॉट गिवन द कंसेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉजिंग डेथ और ग्रेवियस हर्ट। और हो सकता है कि वो आप दोनों को पता हो कि उसमें चांसेस है, तो वहां पर गुड फेथ फिर भी इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, इसको मैं एक बार चार्ट फॉर्म में बताता हूं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 87 में क्या हो रहा है, 87 में ए और बी है, दे हैव एन एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये किस लिए है? ये एग्रीमेंट है कि जो ये दोनों एक्ट करेंगे ना एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, बोथ ऑफ देम while doing the corresponding acts, they will not intend to cause death or grievous hurt, or they will not do any act with the knowledge which has the knowledge of causing death or grievous hurt। ठीक है, प्लस दे विल एक्ट फेयरली। फेयरली का मतलब यह है, फेयरली का मतलब यह है कि जो भी चीज खेल रहे हैं ना, वो फाउल प्ले या फिर कोई जो भी रूल्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। ये जो है ना, ये जैसे सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो ना, तो टूवर्ड्स ईच अदर की बात नहीं है, जो रूल्स ऑफ द गेम है ना, वो आप फॉलो करिए। देखो पंच मारने का जो तरीका, जो एमएमए कहते हो ना, मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है, उसमें उसमें जो एक बॉडी के किसी एक फिक्स पार्ट पे अगर हल्का सा भी पंक्चर, हल्का सा भी आपने पुश कर दिया, तब भी नॉकआउट हो सकता है, और आपने अगर ग्रेवियस दे दिया तब भी एक नॉकआउट हो सकता है। बट द पर्सन इज, इफ द पर्सन इज मतलब फिरोशियसली बीटिंग द पर्सन, फिरोशियसली बीटिंग द पर्सन, वो पिन डाउन हो गया फिर भी तुम मारे जा रहे हो, उसको मारे जा रहे हो, देन यू हैव
एनक्रोच द कंसेंट वाला पार्ट। 87 में नॉकआउट तक की जो बात है ना, मतलब व्हेन द रूल, व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन द गेम, तब तक का डिफेंस अवेलेबल है। अब वो डिफेंस कब मिल गया उसको, जैसे उसने नॉकआउट कर लिया, ही इमर्ज एज अ विनर। नाउ ही ट्राई टू परस्यू हिज पर्सनल ग्रज, वो उसको फिर भी मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो वो 87 का कंसेंट वाला पार्ट आ गया। सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस हैज स्टार्टेड नाउ। Then child is have to charge from so रैश ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है ठीक है। अब इसका आंसर सुनो। इसका जो आंसर है वो ये है कि ऐसे में डिफेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 91 आपको परमिट नहीं करता टू डू एन इलीगल एक्ट। ये उसी तरह से है कि एक औरत है, उसने बी से कहा कि भाई तुम मेरा वो कर दो, क्या कहते हैं उसको, मर्डर नहीं करो, एबॉर्शन कर दो, मेरा एबॉर्शन कर दो। और वो जो प्रेगनेंसी है ना, द गर्ल इज क्विक विद चाइल्ड, क्विक मतलब एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, उसको कहते हैं क्विक विद चाइल्ड। द गर्ल इज क्विक विद चाइल्ड, क्विक विद चाइल्ड, रेसिड्यू ऑफ लिख लेना। सो द गर्ल इज क्विक विद चाइल्ड, और आप उसको कंसेंट दे रहे हो टू डू दिस ऑफेंस। सेम आपका केस है, जब दोनों ने सहमति करी कि हम इलीगल एक्ट करेंगे, तो ये नहीं है। जैसे मास सुसाइड, कोरिया में एक बहुत बड़ा रूल है, वो रूल कह रहा हूं, कोरिया में ना जो यंगस्टर्स हैं, जो कहीं कहीं से डिप्रेस होकर आते हैं, तो वो मास सुसाइड करते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी बंद कर लेते हैं और स्मोक अप करते हैं गाड़ी के अंदर, और वो इवेंचुअली दे मीट देयर मेकर। तो एक सेक्ट है जो इस चीज को फॉलो करता है, मास सुसाइड। तो ये जो कंसेंट है, ऑल ऑफ देम हैव कमिटेड द ऑफेंस। एक्ट लीगल होना चाहिए। तो ऐसे में जब कंसेंट दिया जाता है, देन ओनली यू विल विन द इम्यूनिटी, अदरवाइज द इम्यूनिटी विल नॉट बी अवेलेबल। 87 समझ लो, 87 का मतलब ये है, एक बार फिर से देख लो। 87 में ए और बी का जो एग्रीमेंट था ना, ये जो एग्रीमेंट है, इससे दोनों ने क्या किया, एक्सप्रेस कंसेंट आ गया, एक्सप्रेस कंसेंट आ गया। यहीं पे अगर बी किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में, बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इंप्लाइड कंसेंट है, उसका पार्टिसिपेशन ही एक कंसेंट है, उसका पार्टिसिपेशन ही कंसेंट है। जैसे ही उसने अपने आप को पार्टिसिपेशन के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो वैसे ही वो कंसेंट है। जैसे ही उसने किसी वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर दिया, तो उसका कंडक्ट ही अपने आप में कंसेंट है, कि मुझे ऑब्वियसली पता है कि जो ये हार्म है ना, वो मैं सहन करने को तैयार हूं। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, डर्ट टॉक्स होती हैं, डर्ट टॉक्स होती है ना, कि आई विल किल यू, आई विल ईट यू, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जब डर्टी टॉक्स होती हैं दोनों के बीच में, जो शो डाउन होते हैं। तो ए और बी दोनों खड़े हुए हैं, पब्लिक को तो मजा आता है, दे वांट ब्लड। तो दोनों एक दूसरे को देख के गालियां बक रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ऐसे में भी अगर वो कंप्लेन कर दे ना इंटिमिडेशन के लिए, तो क्रिमिनल लायबिलिटी में अराइज। ताकि अगर कंसेंट आपने 18 इयर्स के विरोध के साथ अगर शिक्षण को किया तो आप डिफेंस ना दे सकते। 87 में रेप के लिए कैसे कंसेंट दोगे? 87 में रेप के लिए कैसे कंसेंट दे सकते हो? और डेथ के अलावा देखो 87 में याद रखो, मगर उसमें उसमें जो गर्ल है वो कंसेंट कैसे देगी? ताकि सेकंड पर्सन अगर 18 नहीं होगा, 12 होगा, तो हर पर्सन जो 18 के बिलो के साथ सेक्शन इंटरकोर्स करता है, वो 87 का। वैसे मैं इसको भी समझा नहीं हूं, तुम्हारी बात जो कही है ना, मुझे समझाना इसको, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। ऑफेंस ऑफ रेप को 87 के साथ कैसे जोड़ेंगे? 18 जो गर्ल के साथ सेक्शन इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, वो 87 का डिफेंस ले लेता हूँ कि मैंने जो हार्म कॉज किया है, कंसेंट ऑफ द पर्सन क्लियर है। मगर ऑफेंस ऑफ रेप, वो ऑफेंस ऑफ रेप मत बोलो, पहले पहले हाँ, पहले पीनाइल इंसर्शन बोलो, कि देयर वाज अ पीनाइल इंसर्शन विद कंसेंट। अच्छा, ओके, देयर वाज अ पीनाइल इंसर्शन विद कंसेंट, और इट डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप बिकॉज द गर्ल हैज कंसेंटेड, राइट, कह सकते हो, कह सकते हो। बट हाँ, कभी सोचा नहीं इसके बारे में।
यस, हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है 18 एज बढ़ाने के पीछे ना जो जो रेशनल है 87 उसमें डिस्कस नहीं किया गया था। जब एज ऑफ कंसेंट बढ़ाई गई है तो एज ऑफ कंसेंट में जो क्या कहते हैं उसको सोसाइटल एबोरेंस को देख के एज ऑफ कंसेंट बढ़ाई गई है, सोसाइटल एबोरेंस को देख के बस, और उसके पीछे और कोई रीजन उन्होंने दिया नहीं है। हालांकि दिस कैन ऑल्सो बी अ वे टू लुक एट इट, बट अभी कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में। मगर जब ये एज बढ़ाई गई है तो इसमें सिर्फ सोसाइटल एबोरेंस को लेकर बढ़ाई गई है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, Like he said, one person was trying an adventure sport, one दिन वन he was वन जो पे so he went there and he was just thrown विदाउट दैट स्ट्रिंग। he, normally people come up and he did not come up, the string, the harness broke and he fell down in the cliff. So he died there. So in that case, can the Yes, they the have- defense under 87 is readily available. if they have made up Yes, yes. They also they already they make the person sign the document. पर जो हार्म है वो कंसेंटेड हार्म होना चाहिए, अगर उससे थोड़ा भी ग्रेवियस हार्म होता है तो इट विल विशेष द। अब यहाँ पे भी जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो जो कैलकुलेशन है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। तो रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से आपको और कंसेंट जो पर्सन ने दिया है वो भी लाइकली नहीं था। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि किसी भी कंपटीशन में ना जीत या हार मैटर करता है। एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हार अब उसमें जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में दोनों ने सहमति दी, ऐसे में क्या हुआ, इट एंडेड अप पैरालाइजिंग वन ऑफ द कंटेस्टेंट। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। यस, एनी अदर हार्म का जो मतलब है ना, एनी अदर हार्म का मतलब है एनी अदर हार्म, बट इट शुड नॉट बी इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और ग्रेवियस हर्ट। एनी अदर हार्म का मतलब है यू हैव फॉलोड द प्रोटोकॉल्स, यू हैव फॉलोड द रूल्स, सुनो, यू हैव फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, both the parties are acting fairly as per the rules, they are obeying the directions of the referee, and in that case if any harm has been caused, so ये जो any harm है ना, इसमें element of intention is missing, ना तो इसमें intention है और ना तो knowledge है, then only the defense of 87 will be available. एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज प्लस और है तो एनी हार्म जो ये कॉज करेगा या फिर हार्म जो डू इंटेंट कर रहा है और जो पर्सनली कंसेंट है टू सफर दैट हार्म, तो वो जो भी हार्म से कॉज हो रहा है हाँ, उसके लिए उसको इसलिए उसने कंसेंट दिया है, मतलब ये सिंपल से देखो ऐसा समझो, अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है, और एनी अदर हार्म कॉज हो रहा है, तो 87 ये कहता है कि तुमने कंसेंट दिया था इस हार्म को कॉज करने की। ये समझ, कोई कंसेंट जो उसके पार्ट एंड पार्सल को इंप्लाइड हो जाएगा, यस कह सकते हो। 87 का परव्यू ये है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब इसको टैबुलर फॉर्म में समझ लो, ये देखो ये चार्ट समझ में आ गया, मतलब दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट ही होगा हमेशा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो एक्सप्रेस हो गया कि हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम दोनों गेम खेलेंगे, या फिर हमने कंपटीशन रखा उसमें से आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेशन के लिए कह दिया कि सर हम एग्री कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने इंप्लाइड कंसेंट दे दिया, आप लोगों ने इंप्लाइड कंसेंट दे दिया, आप लोगों ने कह दिया कि सर हम मतलब इंप्लाइडली आपने कह दिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, वी आर रेडी टू कॉज एनी हार्म, वी आर रेडी टू फेस एनी हार्म, सो वी हैव फॉलोड द रूल्स, all of them are playing fairly, and in that case if any harm has been caused, defense of 87 will be available। जैसे लोग मोटर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट, क्या नाम था उसका, खजित नाम था, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल द नेम, मैं उसका पीएल था, आई वाज द प्रोग्राम लीडर ऑफ दैट चाइल्ड, सो ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड फादर बॉट हिम अ हार्ली डेविडसन। तो हार्ली डेविडसन वाले क्या करते हैं, वो वीकली ट्रिप्स पे जाते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाते हैं बाइक पे, और एक लोग दो लोग नहीं होते, 100 लोगों का एक पूरा झुंड होता है, और टैटू वैटू लगाते हैं और बड़ा स्टाइल मार के जाते हैं। तो सोचो इतने इंसेंसिटिव लोग थे ये लोग
ये जाता है और ट्रक ने उसको ना, बच्चे को ट्रक ने कम से कम 1 किलोमीटर तक खींचा, ट्रक को भी नहीं पता क्या था, ट्रक ने 1 किलोमीटर खींचा और एक्सीडेंट हो गया। और ये बाइकर्स मुड़ के नहीं आए, बाइकर्स इतने सेल्फिश थे कि वो चलते रह गए कि उनका ट्रिप खराब हो जाएगा। सोचिए आप, इस तरीके के लोग हैं। तो बहुत ही 8-9 लाख रुपए की गाड़ी थी, बाइक थी। और तो ये जो है, इस पे क्या इम्प्लाइड कंसेंट है, जस्ट टू बी मेंबर ऑफ द क्लब, यू हैव इम्प्लाइडली टेकन द रिस्क दैट एनी हार्म मे बी कॉज्ड अगेंस्ट यू। ठीक है। नाउ इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में यू हैव टू सी द एक्ट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द क्लब, यू हैव टू सी द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ठीक है। सो तुमने जो कंसेंट दिया था वो किसको दिया था, क्लब को दिया था। तो क्लब से अगर किसी तरीके की त्रुटि, किस तरीके का हार्म होता, तब तुम 87 का तब बात होती है यहाँ पे। बट यहाँ पे तो हार्म तो थर्ड पार्टी ने किया है ना। सो यहाँ पे 87, वो व्यक्ति, वही ट्रक ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि तुम तो खुद ही ट्रक पे, रोड पे जा रहे थे, ऐसा वो नहीं ही। तो ये अलग इंडिपेंडेंट एक्ट है, ट्रक ड्राइवर एंड द बाइकर, इन दोनों की जो एक्ट है वो इंडिपेंडेंट एक्ट है। यस यस। Can we say that under section 787, the person knows what the harm would be if I indulge in this activity, and still he says that I am ready to face the harm. So that is what consent means. That he knows that this harm may be caused in this fighting or fencing, etc. And I am ready to face that harm. ये कह सकते हैं, बट द पर्सन, द डूअर टू whom you have consented will not cause you have any harm intentionally. If he does that harm intentionally, जैसे एग्जांपल बताता हूं, आई रिकॉल अ फिल्म, उस फिल्म का नाम था सिंड्रेला मैन, सुना है, देखिए फिल्म। तो देयर इज अ वेटरन बॉक्सर सिंड्रेला मैन, देखना सिंड्रेला मैन, एक कहानी है, एक बॉक्सर की, उसका नाम है ए। अभी जो ए जो था, ये ग्रेट डिप्रेशन से पहले, अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन थी 1940 से पहले, 1940 से पहले इंडिया, अमेरिका वाज वेरी प्रॉस्परस। 1940 में पूरा गरीब हो गया देश, बहुत सारा टेरेबल अनएम्प्लॉयमेंट था, स्टॉक्स भी गिर गए, भुखमरी हो गई। अब ये भी गरीब हो जाता है, तो ये अपनी लाइफ जो है ना, फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। तो इवेंट ही वाज अ बॉक्सर, तो ही चैलेंजेस द वर्ल्ड चैंपियन, ही चैलेंजेस द वर्ल्ड चैंपियन। अभी जो वर्ल्ड चैंपियन है ना, वो एक को बोलता है, जस्ट ए के मैनेजर को, जस्ट गिव मी समबडी हु कैन फाइट, जो मुझसे लड़ सके। ये तो लड़ भी नहीं सकता, बुढ़ा हो चुका है। सो व्हाट ही डिड, बहुत मेहनत से करता है, और ये दोनों शो डाउन में आ जाते हैं सामने। तो इसमें जो वर्ल्ड चैंपियन है होता है, वो इसकी वाइफ को इंटिमिडेट करता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल विडो यू विल बिकम, इस तरह से। तो उसको इंटिमिडेट करता है, और ये जो होता है ना, ही केप्ट ऑन स्माइलिंग कि आई विल आंसर यू इन द रिंग वगैरह टाइप का जो होता, फिल्म का अलग पर्सपेक्टिव था। तो वर्ल्ड चैंपियन इसको बार बार बोलता है कि तुझे मैं जान से मार दूंगा, और ये चीज न्यूज़पेपर में आ जाती है कि हाँ, ये कि वर्ल्ड चैंपियन ने इसको बोला है कि हम उसको जान से मार देंगे। तो he has been asked by the entire community not to participate, and eventually he emerged as a winner, क्योंकि फिल्म का हीरो वही था। तो जीतता तो यही है, मगर पूरे सिनेरियो इस तरह से दिखाया हुआ है। इस सिनेरियो में ये जो है ना, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए इसको सू कर सकता है। इनफैक्ट जो शोडाउन होता है, शोडाउन में अगर उसको एप्रीहेंशन इस तरीके का मिल गया, तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए उसको चार्ज कर सकता है। ठीक है। बट रूल्स ऑफ द गेम ऐसे हैं कि अगर जब तक तुम ऑफेंस महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम उसके लिए एक्विजिशन नहीं लेके आ सकते। तो वो रूल्स ऑफ द गेम आर एंटायरली डिफरेंट। यस। पैर लगा है और झूले हैं। हम्म। मैं जा रही हूँ, बट मैं कंसेंट के लिए भी कुछ जोर बहुत लगेगी, और फिर मुझे तबियत खराब हुई, इट वाज टू फास्ट। तो क्या वो इम्प्लाइड, इसका आंसर ये है, इसका आंसर यू हैव गिवन द इम्प्लाइड कंसेंट। अब भले ही डोंट, हमने सीखा था ना, डोंट गो ऑन द वर्ड्स, गो ऑन द स्पिरिट, कॉन्ट्रैक्ट में सीखा था। तो वो जज्बात, कहते हैं जज्बात को समझिए। तो ये जो आपका एक्ट है ना, कंडक्ट है, इट इज इम्प्लिसिट कि दैट यू हैव गिवन द कंसेंट। मौत का कुआं है, मौत का कुआं है, तो मौत के कुएं में भी देखने वालों ने भी ये रिस्क कंसेंट दे रखा है। ठीक है। ओके। 88 में और 87 में डिफरेंस समझ में आ गया, नहीं आया? वेरी गुड। 88 में क्या है, 88 में कंसेंट है, और कंसेंट किस व्यक्ति के द्वारा है, जो कि 12 साल से ऊपर का व्यक्ति है। 87 में कौन व्यक्ति है, 87 में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। दूसरी चीज,
88 में when a harm has been caused, it has been caused for your own benefit. आपके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैंने किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे फायदे के लिए मैंने लगाया है यहाँ पे। ये अलग बात है। वेदर और नॉट आई विल सीक द आई विल गेट द डिफेंस, दैट्स अनदर स्टोरी, बट द डिफेंस विल बी सॉट अंडर सेक्शन 88। डिफेंस 88 में मिल जाएगा, मतलब डिफेंस 88 में वो क्लेम करना चाहेगा। ज्यादातर 88 मेडिकल केसेस में है, फिर ये टीचर वाला जो केस है उसमें भी है। हो सकता है, हो सकता है। जैसे जॉली एलएलबी थी ना एक फिल्म, जॉली एलएलबी में क्या होता है, देयर इज अ पर्सन ए, सो ही वाज डेड ऑन पेपर, ही वाज डेड ऑन पेपर। तो वो वो कोर्ट में जाके वो कोर्ट में जाके ऑब्सर्ड एक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उसको कहते हैं कि अगर ये यहाँ से नहीं, इसने बदतमीजी नहीं करना छोड़ा नहीं ना, तो हम इसके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्ज लगा देंगे। तो ही केप्ट ऑन डूइंग दिस थिंग, उसने कहा कि बस तू सर के सामने बस हाथ जोड़ के खड़ा रही हो और बोलता रही हो फालतू का। तो वो फालतू का बोलता रहा, एंड फाइनली कंटेम्प्ट चार्जेस वर पुट ऑन हिम एंड ही वाज पुट बिहाइंड द बार फॉर 2 months। तो जैसे ही वो बाहर आ रहा होता है तो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, कहता है तू मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहा है? कहता है सर किसी तरह से आपने मुझे पेपर पे तो लेके आ गए कि मुझे सजा मिल रही है, तो पेपर पे तो मैं आ गया कम से कम। तो कर सकते हो ये वाला पॉइंट, आ सकता है। मतलब सिनेरियोज आपको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। मगर यहाँ पे ये देखो, जो वकील वाला जो केस है ना, उसमें फिजिकल हार्म जरूरी है। कौन सा वाला हो सकता है? जो हार्म की जो बात 87 और 88 में हो रही है ना, फिजिकल हार्म की बात ज्यादा हो रही है। फिजिकल हार्म जितने भी इलस्ट्रेशन पढ़ोगे ना, फिजिकल हार्म की बात हो रही है। नाउ इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि कंसेंट के ऊपर किसी और चीज के ऊपर बुक पढ़ो ना पढ़ो, 87 से 92 का जो चंक है ना, उस पर बुक रीडिंग इज एडवाइजेबल, पढ़ लेना। अगर कोई किताब है कोई अवेलेबल, कोई किताब है? हाँ, एस एन मिश्रा है, ठीक है। केडी गौड़ा है मेरे पास, यू कैन बोरो इट फ्रॉम मी। और 87 से 88 का जो चंक है, या तो फोटोस्टेट करा लेना या तो पढ़ के मुझे दे देना, ठीक है। शक्ति तुम्हारे पास है कोई किताब? हाँ, पीडीएफ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना। तो 87 से 88 का ऊपर बुक रीडिंग इज एडवाइजेबल, तो लिख लो ये बुक रीडिंग। हम वैसे बोलते नहीं है बुक रीडिंग इज एडवाइजेबल, कुछ चीजों में बुक रीडिंग इज एडवाइजेबल। नाउ सेक्शन 87 88 इज ओवर। It's not a game, it's a